Everyone, so good to be with you today. The Bible says to enter his gates with what? Thanksgiving, and his courts with praise. That's what we've come together to do today. Amen. Thank him for all he's done. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Say it. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, took my sin and my shame, yes you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we do thank you today for all you've done in our lives. By faith, we say thank you for what you're about to do. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, for loving us, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, I just want to
Lord, thank you for all you've done. And by faith, we want to say thank you for all you're about to do in our lives, in our churches, in our towns, in our cities. Come, Lord. We give you thanks by faith. In Jesus' name, amen. Well, it's been an interesting couple of months. And some of you may have grown tired, weary, just worn out by everything. And today the Lord is inviting us to his table. He's prepared a table for us. It's filled with mercy, with grace, with goodness, with provision. And the Bible says he's prepared a table for us in the presence of our enemies. So come, receive his invitation today. Come to the table of the Lord. Like a deer that pants for water, I am thirsty for you, Lord. And in my heart there is a longing. I still believe there's more. So open up the heavens and let your Spirit fall like rain. Wash me in your presence, refresh my life again. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness he provides. All that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. As I come into his presence, I am made complete, feasting at his table and sitting at his feet. Then I will run and not grow weary. I will walk and never faint. I will rise on wings like eagles, for the Lord will be my strength. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness he provides. All that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. And as you bid me come to thee, O Lamb of God, I come. A hungry heart is what I bring
table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. All that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart. Oh yeah. Lord, we're hungry for your presence. And I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. And I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be, I just want to be with you. And I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. And oh my God, you are my strength and my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. Yes, you are. And I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be, I just want to be with you. Make it your prayer. I just want to be, I just want to be with you. Lord, that's our prayer today. We want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, Lord. That's our prayer, Lord. Come, Lord. Thank you for your presence. Come and be big, be magnified in our lives. In Jesus' name. And I have made you too small in my eyes.
Lord, forgive me. And I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Hear my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. And I have leaned on the wisdom of men. Oh Lord, forgive me. And I have responded to them instead of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Hear my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh, lift it up. Be magnified, oh Lord, yes. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Lift it up. Be magnified. Oh Lord, yes. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, Lord. Oh Lord, be magnified. Be glorified. Oh Lord, be magnified. Oh, be magnified. Be magnified, oh God. Be glorified over every situation, Lord. Come and be big. Be glorified. Lord, forgive us for making you too small. Nothing is too difficult for you, Lord. So come, Lord. Come, Lord. Be glorified. Be magnified. Today, in our lives, in our city, in our nation. Come, Lord. Come, Lord. And how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing it. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our
name above all names. He's worthy, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, lift it up, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Just the voices. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, He is. Give Him praise. Thank you, Lord. You're a great God. We exalt you, Lord. Thank you, Lord. Hey there church, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेज सर्विस। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी का सप्ताह आशीषित गया होगा, भला गया होगा। क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। प्रभु, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हम सारे लोगों को, इस सुंदर से परिवार को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें अपने वचन में चलाएं, हमें सिखाइए और हमें बढ़ाइए। धन्यवाद करता हूँ पिता आज की सुबह के लिए। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, 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 आमेन। ब्यूटीफुल। सो मैं आशा रखता हूँ कि आज आप सभी का सप्ताह जो है आशीषित गया होगा। आमेन। और हम काफ़ी खुश हैं कि हम आज की सुबह फिर एक बार इस ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ जुड़ पाए हैं और परमेश्वर के वचन से हम जो है सीखने वाले हैं। आमेन। तो हमारा इस महीने का शीर्षक जो है वो है फॉलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवारें। आमेन। एंड वी हैव बीन लर्निंग सो ब्यूटीफुल। हम बहुत ही सुंदर रूप में पिछले सप्ताह इतवार के दिन तो ब्रदर सतीश्वर ने हमारी अगुवाई करी थी वचन में, परंतु उसके पहले के इतवार में, रविवार में, हमने इसका पहला भाग जो है पढ़ा था। अगर आप और हम आज के मेंबर बनना चाहते हो तो डिटेल्स अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई हैं, तो आप हमारे साथ वहाँ पर संपर्क करके जुड़ सकते हो। आमीन। तो क्यों ना हमारे आज के वचन की ओर जाएंगे। हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यहोशू की किताब उसके 6वें अध्याय में, जोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 6, और 6वीं आयत से जो है हम पढ़ने वाले। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर, आशा रखता हूँ अंग्रेज़ी और हिंदी में जो है आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो आपके स्क्रीन के ऊपर वचन जो है डिस्प्ले करा जाएगा। Amen. So let's read verse 6 onwards. And Bible says, and Joshua the son of Nun called the priests and said unto them, take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horn before the ark of the Lord. And he said unto the people, pass on and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. Okay. And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, that the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horns passed on before the Lord, and blew with the trumpets, and the ark of the covenant of the Lord followed them. And the armed men went before the priests that blew with the trumpets, and the rearward came after the ark, the priests going on and blowing with the trumpets. Amen. आज का पहला मुद्दा लिख लेंगे, write down today's first point, and that is partake in obedience. आज्ञाकारिकता में भाग ले। Amen. आज्ञाकारिकता में भाग ले।
अंग्रेजी में पार्टेक इन ओबीडियंस। ओके, इसका क्या मतलब है? आप यहाँ पर से ध्यान से जो है एक चीज़ को देख पाओगे। यहोशू को इस समय यीशु मसीह ने जो है दर्शन देकर कहा था कि किस तरीके से यरीहो की दीवारें जो है परमेश्वर गिराने पर थे, और वो होने के पहले कुछ काम होना ज़रूरी है। वो काम क्या है और कैसे करना है, इसका ब्लूप्रिंट, इसका एक आइडिया जो है यहोशू को यीशु मसीह ने वहाँ पर दिया था। आमीन। हम कैसे समझते हैं कि जो यहोशू से आकर मिले वो यीशु मसीह ही थे? हमने पिछले रविवार में हमने उसके बारे में मनन किया है, वचन से जाना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके, अगर आपको नहीं पता हो तो आप जाकर देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर लिखा है, और उसी तरीके से जो है यहोशू ने यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञा का अनुकरण किया, आज्ञाकारिकता में उसने भाग लिया। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है मसीही लोग होने के तौर पर? हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में जो यरीहो की दीवारें हैं वो तोड़ना चाहता है। ओके, उन दीवारों को वो तोड़ना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, वरन वो दीवारें गिराने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, पर हम वो करते नहीं हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है। आप अगर सोच रहे हो कि ब्लूप्रिंट क्या है, क्या वो प्लान है, हमें तो यीशु मसीह ने दर्शन नहीं दिया, हमें तो प्रभु ने आकर कुछ बताया नहीं। आप आपके हाथों में जिस पवित्र शास्त्र को फिलहाल थामे रखे हों, पकड़े रखे हों, वो आपका ब्लूप्रिंट है प्रियो। वो आपका जो है वो प्लान है जो परमेश्वर ने आपको अदा करने के लिए दिया है। आमीन। और अगर आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, आप केवल जंगल में अटके रहोगे। आपको पता है क्यों इजरायली लोगों को 40 दिन का जो सफ़र है वो सिर्फ वो 40 सालों का हो गया? अगर आप ध्यान से देखो, मिस्र देश से यरीहो तक का सफ़र जो है सिर्फ केवल 40 दिन का है, लेकिन इन्हें 40 साल लगे उस जगह पर पहुंचने के लिए। क्यों पता है? कई बार परमेश्वर ने कुछ बात करने के लिए कही, परंतु उन इजरायलियों ने वो किया नहीं, उसका उल्टा कर दिया या कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और नुकसान खुद ने ओढ़ लिया। वी नीड टू स्टॉप बीइंग ओवर स्मार्ट विद गॉड्स प्लान। परमेश्वर से कई ज़्यादा होशियार बनने का प्रयास हमें आज बंद करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों बताएं? अगर परमेश्वर मुझे और आपको, हम सभी को कोई प्लान दे रहे हैं, कोई आज्ञा दे रहे हैं, किसी रीति में चलने का सुझाव दे रहे हैं, तो उसके पीछे उन्होंने कुछ सोचा ज़रूर है। और यहोशू से हम यहाँ पर एक बात, ऐसी बात सीख सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसा यीशु मसीह ने उसे करने के लिए कहा था। यहाँ पर थोड़ा भी उसने अपने मन की कुछ करी नहीं। जैसे प्रभु ने करने के लिए बोला, उसी तरीके में यहोशू ने उन चीज़ों को करा। आमीन। यहाँ पर बड़ी सुंदर रूप में लिखा है, यहाँ पर लिखा है टेक अप जोशुआ, 6वें में लिखा है, एंड जोशुआ द सन ऑफ नन कॉल्ड द प्रीस्ट्स एंड सेड अनटू देम, टेक अप द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord। यानी कि जो वाचा का संदूक है, जो वाचा का संदूक है, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट, उसको जो है कहा गया कि तुम उसको जो लेकर जाओगे ना, उसके आगे जो है ये जो याजक है, इन्हें जो है हॉर्न्स लेके जाने थे, जो वो बजाने वाले थे। उन्हें वो बजाने के लिए कहा गया था। क्यों पता है? अगर आप किसी मंत्री को देखोगे ना, जब कोई मंत्री आते हैं, उनका आने का एक स्टाइल होता है। उनके गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा बल्ब होता है। बल्ब नहीं, वो सायरन बोलते हैं उसको। वो सायरन बजता है ज़ोर ज़ोर से, सबको मालूम पड़ता है कि यार कोई VIP आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, कोई MLA आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। हमारे परमेश्वर का भी आने का स्टाइल है। जब वो आता है ना, तो ऐसा ट्रम्पेट बजता है, तो ऐसा हॉर्न बजता है। दिस इज सो प्रॉफिटिक व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। हम जो सीख रहे हैं, ये बड़ा ही एक बहुत ही नबूवत है जो हम सीख रहे हैं। दिस इज कंप्लीटली प्रॉफिटिक व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लॉर्ड हेल्प देम अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने उनको कहा था कि पहले याजक जाएंगे, वो वहाँ पर ट्रम्पेट्स ब्लो करेंगे, और उसके पीछे जो है लोग जो है वाचा का संदूक लेके आएंगे।
आपको पता है क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दी वाचा का संदूक लेके जाने के लिए? उनको तो परमेश्वर ऐसे ही बोल सकता था ना, जाओ खाली हाथ अपने अपने जाओ, अपने अपने लोग वहां पर राउंड्स करो, ये करो वो करो, और सब कुछ हो जाने के बाद लौट आओ। प्रभु ऐसे बोल सकते थे ना। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने वहां पर यहोशू को कहा कि जब तुम जाओगे तुमको क्या करना है? तुमको वाचा का संदूक लेके जाना है। यू हैव टू टेक द आर्क ऑफ कवेनेंट। आमीन। यू हैव टू टेक इट। क्यों पता है? क्योंकि वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। अगर आप थोड़ा पहले जाकर देखोगे निर्गमन के पुस्तक में, पिता परमेश्वर के बीच में और मूसा के बीच में एक ऐसी बात हुई जिस वजह से हम ये जो हो रहा है हम ये देख पाते हैं। बात क्या हुई आपको पता है? प्रभु ने वहां पर कहा, मूसा ने प्रभु को कहा कि प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं आ रहा है, अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं आ रही है, तो हमको यहां से आगे लेकर ना चल, हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। यह निर्गमन के पुस्तक में कहा गया था, वो भी मूसा को। परमेश्वर ने क्या कहा गया था? क्या परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि इन लोगों ने इतना मेरे खिलाफ पाप किया है और ये लोग इतने बेशरम हो गए हैं, इतने एड़ी गर्दन के लोग हैं। वचन में इंग्लिश में स्टिफ नेक लिखा है, हिंदी में एड़ी गर्दन के लोग लिखा है। इतने स्टबर्न हो गए हैं ये लोग कि ये लोग पाप करने से रुक नहीं रही है, और मुझे डर है कि अगर इन्होंने पाप किया तो मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लेकिन एक स्वर्गदूत भेजूंगा, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें सारे शत्रुओं पर विजयता प्रभुता को प्राप्त करके देगा, और तुम्हें अपने वायदे की भूमि भी मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। लेकिन मूसा ने कहा, प्रभु अगर तू नहीं आ रहा है तो हमको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ठीक है, माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। और उसी का चीज़ हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहोशू ने उस वाचा के संदूक को लेके जाने का चुना। आमीन। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जॉशुआ ओबेड गॉड। पार्टेक फ्रॉम ओबीडियंस गाइस। परमेश्वर के आज्ञाकारिता में से भाग ले। यहोशू इन लोगों का लीडर था यहाँ पर। यहोशू ने यीशु मसीह की बात मानी, है ना, परमेश्वर के पुत्र की बात मानी, और यहोशू की बात सारे याजकों ने, सारे इज़राइल के लोगों ने जो वहाँ पर घूम रहे थे, इस चीज़ में भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे, इस सारे लोगों ने भी यहोशू के कही हुई बातों का पालन किया, आज्ञाकारिता निभाई। एक कलीसिया होने के नाते हम सभी को आज्ञाकारिता में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। द प्रॉब्लम इज़ हम एक दूसरे की टांग खींचने में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम आज्ञाकारिता छोड़ो एकता भी भूल गए हैं। We are not even united anymore. We just keep on pulling each other's legs. याद रखिएगा, हम किसी बैनर के लिए नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, और ये किसी और का नहीं है, ये मेरे या आपके नहीं है, हमारे पिता का राज्य है। आमीन। हमें एक साथ मिलकर इसमें आज्ञाकारिता में भाग लेना बड़ा ज़रूरी है। सो आगे लिखा है, let's continue to read forward, and Bible says कि मूसा ने यहोशू ने कहा कि जो भी याजक थे उनको कहा, टेक अप द आर्क ऑफ द कवेनेंट एंड लेट 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord, and he said unto people, pass on and compass the city, यानी कि जो शहर है उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाओ, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. And it came to pass, when Joshua had spoken unto the people, and the 7 priests bearing the 7 trumpets of ram's horns passed on before the Lord and blew with the trumpets, and the ark of the covenant of the Lord followed them, and the armed men went before the priests and blew the trumpets, and rewarded came after the ark, the priests going on and blowing with the trumpets. पहला मुद्दा यही था कि हमें एक साथ मिलकर जो है आज्ञाकारिता में भाग लेना है। आपके निजी आत्मिक जीवन के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा कलीसिया, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर हमें एक साथ आज्ञाकारिता में भाग लेना है तो फिर मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों कुछ दिखता नहीं है, क्यों पता है, जब पिता परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए अगर बोला है, स्वर्गदूत उस चीज़ को मानते हैं, जैसा प्रभु ने कहा वो आपके जीवन में उस तरीके के काम भी करने लग जाते हैं।
आपके लिए लड़ने लग जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन अगर आप ही वो व्यक्ति ठहरते हो जो आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे, तो यही हो कि दीवारें छोड़ो, अब जंगल में ही अटके पड़े रहोगे। रिमेंबर, वी आर कॉल्ड टू ओबे गॉड। आमेन। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता निभाने के लिए बुलाया गया है। आमेन। सो नेवर फॉरगेट। ओके, सो दूसरा मुद्दे की ओर जाएंगे। दूसरा मुद्दा आज के दिन के लिए है डू एज सेड। जैसा कहा गया है वैसा ही करे। Wow. And Bible says further, and Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day I bid you shout. Then shall ye shout. इसका मतलब क्या है आपको हिंदी में बता दूं। यहोशू ने आज्ञा दी। अगर आप आपके पवित्र शास्त्र में पढ़ रहे हो, अगर आपके फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको कृपया करके अंडरलाइन या हाईलाइट करें। यहाँ पर क्या लिखा है? यहोशू ने आज्ञा दी उसके पीपल को, अपने लोगों को। जब भी परमेश्वर का दास आपको आज्ञा देता है, सुझाव नहीं, आज्ञा देता है, उनके उस दिए हुए आज्ञा का आदर करें। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या आज्ञा दिया कि तुम चिल्लाओगे नहीं, पहला बात, या तुम कोई भी आवाज नहीं करोगे अपनी खुद के आवाज के साथ। अपने मुंह से एक शब्द भी तुमको निकालना नहीं है। वाह। मतलब अगर आप ध्यान से अगर मेरे साथ एक बार कल्पना करें, तो इसका मतलब ये होता है, परमेश्वर ने कहा, यहोशू ने अपने लोगों को ऐसी आज्ञा दी कि आपको पिन ड्रॉप साइलेंस रख के वहां पर गोल घूमना है। पिन ड्रॉप का अर्थ क्या है जिनको नहीं पता है? अगर किसी कमरे में अगर आप एक सुई को नीचे सिर्फ गिरा देते हो, जिस तरीके का आवाज़ वो कब सुई गिरने का आवाज़ कब आएगा? जब कमरे में उतना सन्नाटा हो, है ना? उसको पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं। उतना सन्नाटा रखकर वो चक्कर लगाने के लिए यहोशू ने उनको आज्ञा दी, सुझाव नहीं दिया, आज्ञा दी। जब आपका पासबान आपको सुझाव दे और आज्ञा दे, उन दोनों में अंतर जो है उसको समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे दास का मुख मेरा मुख है। आपको नहीं पता कब परमेश्वर उनके मुख से बात करे। आमेन। सो मेक श्योर यू फॉलो एंड यू ओबे योर पास्टर। ओके, तो उसमें बहुत ही सुंदर रूप में लिखा है, यहोशू ने कहा कि कुछ भी नहीं करना है, आपको चिल्लाना भी नहीं है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकालना है, आपको शब्द भी नहीं निकालने हैं, कुछ भी नहीं बोलना है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक, और जब मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ तब आपको जोर से चिल्लाना है। ओके, एंड आगे लिखा है, सो द आर्क ऑफ द लॉर्ड कंपास्ड द सिटी, यानी कि वो वहां पर घूमे गोल, गोइंग अबाउट इट वंस, एक बार, एंड दे केम इनटू द कैंप, और फिर वो वापस अपने छावनी में, अपने बस्ती में आकर रहने लगे, एंड लॉज्ड इन द कैंप। एंड जोशुआ रोज अर्ली इन द मॉर्निंग, यहोशू फिर एक बार सुबह में जल्दी उठ गया। एंड द प्रीस्ट टुक अप द आर्क ऑफ द लॉर्ड, भोर के समय यहोशू उठा और जो याजक है उन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाया। एंड द 7 प्रीस्ट्स बेयरिंग 7 ट्रम्पेट्स, वो वापस उन्होंने वही किया। परमेश्वर के वाचा की संदूक यहाँ पर है, उसके आगे जो याजक लोग हैं जिनके हाथ में ट्रम्पेट है वो है, और वो वापस वैसा गोल गोल घूम रहे थे। ये दूसरा दिन था, ठीक है। और जो जिनके हाथ में शस्त्र थे वो उनके आगे थे, वो वापस गोल गोल घूम रहे थे। परमेश्वर का वचन कहता है, एंड द सेकेंड डे दे कंपास्ड द सिटी वंस, दूसरे दिन एक बार उन्होंने वैसा घूमा, एंड रिटर्न इनटू द कैंप, सो दे डिड 6 days। उन्होंने इसी कार्य को, इसी क्रिया को 6 दिन लगातार किया। वाह, दिस इज सो गुड। 6 दिन, 6 दिन। अभी इसका अर्थ समझिएगा। 6 दिन इन सारे लोगों में से एक ने भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, है ना? आपस में कुछ बात नहीं किया, जैसा यहोशू ने उनको आज्ञा दिया था, याद है ना? किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने आवाज नहीं निकाला, शोर नहीं किया, कुछ नहीं किया। एवरीबडी वर साइलेंट, हर कोई शांत था। वाह, इसके लिए ये मुद्दा है, जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। डू एज सेड, खुद का कुछ मत करना, उसमें जैसा बोला गया है ना बस वैसा करो। अगर प्रभु ने करने के लिए बोला है, कुछ सोच समझ के ही बोला है। हम इंसान हैं, हम सोच समझ के निर्णय लेने के बाद भी गलती करते हैं, फिर भी हमें उसका पछतावा होता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। लेकिन वो परमेश्वर है, वो उससे गलती नहीं होता है। आमेन, ब्यूटीफुल। अगला मुद्दा है दी एक्यूरेट टाइम।
द एक्यूरेट टाइम, सर्वोत्तम समय, द एक्यूरेट टाइम। ओके, लिख लेंगे। तो पहला मुद्दा हमने लिया वो था पार्टेक इन ओबीडियंस, ओके, आज्ञाकारिता में भाग ले। दूसरा था डू एज सेड, जैसा कहा गया है वैसा करे। तीसरा है द एक्यूरेट टाइम, ओके, सही समय। Bible says, and it came to pass on the seventh day that they rose early about the dawning of the day. You know, क्या मैं आपको okay, let me read first. And compassed the city after the same manner 7 times. Only on the day they compassed the city 7 times. Only that day. सिर्फ हर रोज वो जो है एक बार घूमते थे और जाके अपने सो जाते थे। दूसरा दिन उठता था ये लोग, एक बार घूमता था, सो जाता था। 6 दिन ऐसा किया, लेकिन 7वें दिन में उन्होंने क्या किया, 7 बार घूमे उस जगह पर। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान से देख पाओगे, यहां पर लिखा है एंड इट केम टू पास ऑन द 7th डे दैट दे रोज अर्ली अबाउट डॉनिंग ऑफ द डे, यानी कि सूरज निकलने के पहले भोर के समय ये सारे के सारे लोग वहां पर जाकर खड़े हुए। सिर्फ यहोशू नहीं, सिर्फ याजक लोग नहीं, सारा इजराइल। क्यों पता है? जब बात कलीसिया की आती है, जंग केवल आपके पासबान की नहीं होती है, जंग आपकी भी होती है। आमीन। लड़ने वाला केवल आपका पासबान नहीं होता है, आप सारे के सारे लोग होते हो। जब बात एक कलीसिया होकर ये सारी चीज़ें करने का आता है, तो अगर आप कलीसिया में नए हो, 1 हफ्ते पहले ज्वाइन करे हो, 1 दिन पहले ज्वाइन करे हो, या आज ही आपका पहला दिन है, आपको भी जंग लड़नी है। आमीन। अगर आप 15 साल से कलीसिया में हो, हाँ हमारा पास्टर सब कुछ ख्याल रखता है हमारा, आपको भी ख्याल रखना है, भूलिएगा नहीं, यू नो। और अगर आपका ये पर्सनल लाइफ के यरीहो के दीवारों की बात हो रही है, फिर भी आपको सुबह के समय उठना बहुत ज़रूरी है। भोर के समय उठने की तैयारी कीजिए, यू नो। हमको लगता है कि यू नो, अरे पास्टर हमसे सुबह में उठने को होता नहीं है, हम दिन में प्रार्थना करेंगे। दिन में शत्रु ऐसा परिस्थिति लाता है, दिन भर में टाइम नहीं मिलता है, और जिसने दिन दिखाया उसी के लिए टाइम नहीं बचता हमारे पास। भोर का समय उठिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि जंग लड़नी है, खाना नहीं है हमको, जाके जंग लड़नी है। यू नो, बाइबल सेज दे यू नो that they rose up, they rose early about the dawning of the day and compassed the city after the same manner 7 times. Only on that day they compassed the city 7 times. सिर्फ उसी दिन 7वें दिन पर उन्होंने 7 बार उस यरीहो के शहर के चक्कर लगाए। बाकी 6 दिन सिर्फ एक बार लगाया था। And it came to pass at the 7th time when the priests blew with the trumpets, Joshua said unto the people, shout. 7 बार होने के बाद यहोशू ने कहा कि चिल्लाओ। And this I know, for the Lord hath given you the city, क्योंकि परमेश्वर ने ये शहर आपको दिया है। Wow, I feel such a heavy anointing right now. You know, for the Lord has given you the city, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये शहर दिया है। चक्कर किसने लगाया? इजराइलियों ने लगाया। उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? यहोशू अगुवाई कर रहा था। यू नो, सब कुछ इंसानों ने किया ना, लेकिन इसमें परमेश्वर का क्या है? क्या इंसानों ने कुछ नहीं किया, इंसानों ने सिर्फ ओबे करा है, आज्ञाकारिता दिखाई है। यू नो, देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू रिसीव। या मैं उसके ऊपर अभी बात करने वाला हूं। हमें ना कभी कभी हम यू नो, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। हम मसीह लोगों का एक प्रॉब्लम है, हमारे पास एक चीज़ ऑलरेडी होती है, हमको दी गई है वो, बस हम उसको पा नहीं पाते, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। वी फेल टू रिसीव इट, और हम उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल दूँ आपको। बहुत लोग मुझे प्रार्थना करके फ़ोन करके बोलते हैं क्योंकि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है, मुझे ऐसा है वैसा है। प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। जितना मुझे याद है, आपका पता नहीं, पर मुझे जितना याद है, मेरे बाइबल में, एटलीस्ट मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चंगाई को दे दिया है, तो मैं और क्या मांग रहा हूँ? दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव। वी फेल टू रिसीव व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन। परमेश्वर ने जो दिया है, हम उसको पाना ना, हमको उसको स्वीकार करना नहीं आता है। हमको लगता है अब नए से मांगना पड़ेगा। पता है आपको,
लेकिन यहोशू को पता था कि परमेश्वर ने वो भूमि ऑलरेडी इजराइलियों के नाम कर दी है। कब इजराइलियों के नाम वो जमीन हुई आपको पता है? तब नहीं जब यीशु मसीह ने यहोशू को दर्शन दिया, तब नहीं जब उनको पता चला कि यरीहो नाम का कोई जगह है, वहां पर उन्होंने जासूस भेजे, नहीं, तभी का भी नहीं है। ये कब था पता है? जब परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि मैं तेरी संतान को इतना बड़ा बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा, अनगिनत तारों के समान। उसी समय परमेश्वर ने आई टीच दिस ऑलवेज, मैं इसके बारे में हमेशा सिखाता हूं कि जब परमेश्वर आपको किसी कोई योजना आपके जीवन के ऊपर रखते हैं ना, तो आपको बनाने के पहले आप कहां पर जाओगे वो जगह वो पहले बना के रखता है। आदम हवा को बना के फिर पृथ्वी नहीं बनाया परमेश्वर ने, पहले परमेश्वर ने उनके लिए जगह बनाया और फिर उनको बनाया और फिर बोला तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक जगह तैयार है। परमेश्वर ने यरीहो इजराइलियों के नाम पर अब्राहम से बात करने के पहले, उसको वाचा देने के पहले ही स्थिर करके रखी थी। पर उनके अब्राहम के नहीं ऑफ कोर्स, बट बाद में जो है इजराइली जो लोग थे, जो यूसुफ के बाद जो है उनकी वहाँ पर उनकी आबादी बढ़ी और इजराइल इतने सारे लोग इजरायली लोग बन गए। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनके निरंतर अनाज्ञाकारिता की वजह से वो उनके वायदे के भूमि तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। व्हाई? They did not know how to receive it from God. वो उनके नाम ऑलरेडी था पर उनको स्वीकार करना कभी आया ही नहीं। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको वो यरीहो की जो दीवारें हैं ना, उसके अंदर की जो ज़मीन है ना, वो आपके नाम परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दी है। पर उसके लिए आपको जाकर दीवारों पर पत्थर मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आपके बल पर उन दीवारों को नहीं गिरा सकते हो, आपको परमेश्वर के बल की जरूरत है। क्यों? वचन बोलता है कि युद्ध हमारा नहीं है वरन परमेश्वर का युद्ध है। युद्ध परमेश्वर का है। आप लड़ोगे, परमेश्वर बैठेगा। आप उसके उपस्थिति में बैठोगे ना, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। नो फॉरगेट दिस। आमीन। यहोशू को वो समझ आ गया था, इसके लिए यहोशू ने कहा अपने ज़बान से एक शब्द को भी नहीं निकालना, थोड़ा भी शोर नहीं करना, थोड़ा भी आवाज़ नहीं करना, चुपचाप जैसा बोला गया वैसा करो। क्यों? युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आई वांट यू टू नो दिस टुडे। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें। आमीन। यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में लिखा है, एंड द सिटी शैल बी अकर्स्ड इवन इट एंड ऑल दैट आर देयर इन to the Lord. Only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in that house, because she hid the messengers that we sent. And ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourself accursed when ye take the accursed thing and make the camp of Israel a curse and trouble it. But all the silver and gold and vessels and brass and iron and consecrated unto the Lord, they shall come into the treasury of the Lord. So the people shouted with the priests, blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpets, and the people shouted with a great shout, the wall fell down flat. वहाँ पर जो wall fell down flat, ये जो 4 शब्द है ना, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट करें प्लीज। वो दीवार नीचे गिर पड़ी। The wall fell flat. जब परमेश्वर आपके लिए जो दीवारें आपके लिए एक प्रॉब्लम बनी पड़ती है ना, उन दीवारों को वो जब गिराते हैं ना, वो उसको आधा नहीं गिराते हैं, वो उसको जमीन पर फ्लैट गिराते हैं। Amen. You have to, he breaks those down. वो उन दीवारों को तोड़ गिराते हैं नीचे। जैसे ही आप आपके आवाज को उठाओगे और ट्रम्पेट को बजाओगे। समझ में आ रही है बात? जब आप आपके मुख को खोलकर डिक्लेयर करते हो, अंगीकार करते हो, घोषणा करते हो,
उस समय वो दीवारें नीचे टूट गिरती हैं। आज कलीसियाओं में लोगों को सिखाया जाता है कि परमेश्वर के दरबार में आवाज़ नहीं करना, स्तुति आराधना के समय ताली नहीं बजाना, एकदम अच्छे से खड़े रहना। जितना मुझे याद है, दाऊद इतना स्तुति किया कि वो नंगा हो गया था, वो निवस्त्र हो गया, तो उसको उसका ये भी नहीं था, ध्यान नहीं था। जितना मुझे याद है, परमेश्वर ने जो उनको भूमि दिया, वो उसमें जाने के लिए पहले तो इनको जोर से चिल्लाना पड़ा था। परमेश्वर का भवन 4 दीवारें नहीं है, मैं और आप है। परमेश्वर की उपस्थिति किसी ज़मीन पर नहीं उतरती है, अब वो ज़मीन हम पर उतरती है। We break that religious spirit in the name of Jesus. बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो दीवार है नीचे गिर पड़ी, it just fell flat, so that the people went up into the city. तो लोग शहर के अंदर गए, every man straight before him and they took the city. हर आदमी को मार गिराया और उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। एंड दे utterly destroyed all that was in the city. जो भी उस शहर में था सब उन्होंने खत्म कर दिया। the man, the woman, आदमी औरतें, young and old, बुजुर्ग और जो जवान थे, and ox and sheep, जो भी उनकी भेड़ बकरियां थी, and ass, जो भी गधे थे, with the edge of the sword, तलवार से यहाँ पर एक चीज समझने लायक है। बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर जी, मेरे को डिलीवरेंस अगर मिल गया है दुष्ट आत्माओं से, अगर मुझे छुटकारा मिल चुका है, मुझे कुछ दिन तकलीफ नहीं हो रही थी, अब वापस तकलीफ होने लग गई है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यहोशू ने वो चीज़ बहुत सुंदर रूप में बताया है। ठीक है, यहोशू ने क्या कहा कि ये सिटी शाल बी अकर्स्ड, ये जो ज़मीन है ये श्रापित है। अगर इसमें से तुम कुछ भी वस्तु को लेते हो, यदि तुम भी श्रापित हो जाओगे, और तुम्हारी वजह से पूरा इज़राइल का छावनी भी श्रापित हो जाएगा। जो चीज़ को परमेश्वर ने आपके जीवन के बाहर फेंका है, उस चीज़ को जाकर वापस खींच के मत लेके आना। क्यों पता है? हालत पहले से बदतर होगा। यस, दैट्स ट्रू। आप बोलोगे कि आई वॉज डीलिंग विद स्पिरिट ऑफ लस्ट, मैं वासनाओं के दुष्ट आत्मा से पीड़ित था या थी। हाँ, अभी तो ठीक है ना, अभी तो छुटकारा पा लिया ना। पर अगर आप खुद जाकर उन चीज़ों को देखोगे जो आपको नहीं देखनी चाहिए, करोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो उस आत्मा से प्रेरित है, आप खुद उन चीज़ों में जाकर सहभागी हो रहे हो, तो पहले से हालत बुरा होगा। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत ही आपको संभल कर रहना है। आमीन। आगे का अगला मुद्दा लिख लेंगे, डू नॉट फॉरगेट द फेथफुल। विश्वास योग्यता लोगों, जो विश्वासी लोग हैं उनको भूले ना। जो विश्वास योग्य लोग हैं उनको भूले ना। Do not forget the faithful. Bible says, but Joshua had sent unto the 2 men that had spied out the country. जो 2 जासूसों को यहोशू ने भेजा था, उनको यहोशू ने कहा, go into the harlot's house, उस स्त्री के घर में जाओ, and bring out thence the woman and all that she had, उस औरत को और उसके सारे परिवार को बाहर लेके आओ, as ye swear unto her, जैसे तुमने उससे वायदा किया था। and the young men that were spies went in, जो जवान जो जासूस थे वो दोनों अंदर गए, राहाब को लेकर आए, उसके पिता को, उसकी माता को, उसके भाई को, and all that she had, और उसके पास जो भी था उन सबको बाहर लेकर आए, and they brought out her kindred, बाहर ले, and left them without the camp of Israel, and they burned the city with fire. उन राहाब को, उसके परिवार को बाहर लेकर आए और पूरे शहर को उन्होंने जला डाला। यहोशू ने उस विश्वास योग्यता को नहीं भूला जो विश्वास योग्यता राहाब ने अदा करी थी उन 2 जासूसों के प्रति। मैंने पहले भी बोला था ना, हम मसीह लोग एक दूसरे का टांग खींचने में बिजी होते हैं। एक बार एक दूसरे को मदद करके देखो, और देखो परमेश्वर आपको आपके प्रॉब्लम से कैसा बचाता है। राहाब भी उन्हीं में से एक थी, उन्हीं लोगों में से एक थी, यरीहो के लोगों में से एक थी, परंतु परमेश्वर ने कहा कि नहीं,
यहोशू ने बोला नहीं, उसको निकाल के लाओ, उसको, उसके परिवार को और जो भी उसका है सबको बाहर लेके आओ। बी फेथफुल टू द वंस हु रिमेन फेथफुल टू यू। जो आपके प्रति विश्वास योग्य ठहरते हैं ना, आप भी उनके प्रति विश्वास योग्य ठहरो, आप मत धोखा दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे बर्न द सिटी विथ फायर, उन्होंने पूरे शहर को जला डाला। एंड देयर वाज देयर इन ओनली द सिल्वर, उसमें सिर्फ सोना था, चांदी था, वेसल्स ऑफ ब्रास एंड आयरन, दे पुट इनटू द ट्रेजरी ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने वो सारा का सारा जो सोना चांदी था, वो सारा का सारा लोहा, वो सब चीज़ उठाकर उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए उस भेंट के डिब्बे में डाल दिया। ऑफरिंग बोलते हैं ना, हम दान देते हैं ना, हमारा भेंट चढ़ाते हैं ना, हमारा दशमांश वगैरह, वैसा उन्होंने वो सारा का सारा परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, काम करने के लिए, है ना। एंड जोशुआ सेव्ड राहाब, और यहोशू ने राहाब को जिंदा बचाया, उसके पिता को और उसके सारे घराने को, वचन बोलता है, और उसके पास जो भी था उन सब चीज़ों को। एंड शी ड्वेलथ इन इजराइल इवन अनटू दिस डे, और आज भी राहाब का जो परिवार है, तब से लेकर उसकी जो संतानें हैं अब तक इस दुनिया में अगर होंगी तो वो सारे के सारे आज तक इजराइल में निवास करते हैं। आमीन। And all that she had, Bible says, जो भी था सब बचा लिया गया, because she hid the messengers, क्योंकि उसने उन जासूसों को छिपाया, which Joshua sent to spy out Jericho, जिनको यहोशू ने भेजा था यरीहो को जांचने के लिए। ओके, आखिरी मुद्दा, God lifts you up। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं। God lifts you up. Amen. And Joshua, Bible says, and Joshua adjured them at that time, saying, cursed be that man before the Lord that riseth up and buildeth this city Jericho. क्या आपको पता है, जो व्यक्ति आपके खिलाफ में यरीहो की दीवार बांध रहा है वो ऑलरेडी श्रापित है। जो व्यक्ति आपके खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति आपके खिलाफ यरीहो की दीवार को बांध रहा है ताकि आप आपके हक के वायदे की भूमि में प्रवेश ना कर सको, परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोशू ने कहा कि लेट दैट मैन बी कर्स्ड, वो मनुष्य श्रापित है। और अगर आप किसी के खिलाफ में यरीहो का शहर बांधने का सोच रहे हो ताकि वो अपने वायदे के भूमि में प्रवेश ना कर पाए, आप श्राप के हिस्से भागीदार बन रहे हैं। केयरफुल रहना, बी वेरी केयरफुल, डू नॉट डू दैट। ओके, डू नॉट डू दैट। एंड बाइबल सेज, cursed be that man before the Lord that riseth up and buildeth this city Jericho. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall he set up the gates of it. So the Lord was with Joshua. परमेश्वर यहोशू के साथ था, and his fame was noised throughout all the country. पूरे राज्य में यहोशू के जो किस्से हैं, जो उसकी कहानी है, ये प्रचलित हुई, सब लोगों तक पहुंची, फेमस हो गया वो, आज की भाषा में अगर बोले तो, है ना। उसको सारे लोग जानने लग गए कि अरे कोई तो है जिसने यरीहो की दीवारों को तोड़ गिराया। मोटी दीवारें थी वो, कितनी ऊंची, कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में हम अगले इतवार में ज़रूर सीखेंगे, लेकिन ऐसी दीवारों को, मतलब अगर आपको ना पता हो, अगर आप थोड़ा अभ्यास करें तो जो यरीहो के जो लोग थे वो उन दीवारों पर निर्भर थे, उनके हथियार और उनके सैनिकों से ज़्यादा वो उन दीवारों पर निर्भर थे। मुझे नहीं पता कौन सा किस तरीके की दीवारें शत्रु ने बांध के रखी है जिसकी वजह से आप उस वायदे के भूमि में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे जानना भी नहीं, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, वो जिन दीवारों पर निर्भर है, जिन दीवारों के भरोसे पर बैठा है कि आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे ना, उन दीवारों को तोड़ने का सामर्थ्य मेरा परमेश्वर रखता है।
और बात सिर्फ वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, वो शहर को जलाने का अधिकार भी आपके पास है। आमीन। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा आज की सुबह कलीसिया। मुझे नहीं पता आपके जीवन में वो यरीहो की दीवार क्या है। किसी के लिए आर्थिक समस्या हो सकती है, किसी के लिए शारीरिक बीमारी हो सकती है, किसी के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन यानी कि मेंटल इलनेस, जिनको बहुत सारा प्रेशर होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन होगा, कठिनाई होंगी, आप समस्या से जूझ रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कलीसिया, जिस परमेश्वर की हम मेज़बानी करते हैं वो परमेश्वर काफ़ी है, उसकी आज्ञा काफ़ी है उन दीवारों को तोड़ गिराने के लिए जिन दीवारों के भरोसे पर शत्रु और उसकी सेना बैठी है। आमीन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सिर्फ आज्ञाकारिकता में एक बार चल के देखें, जैसा कहा गया है बस वैसा करके देखो, कम ज़्यादा कुछ करना नहीं, वैसा का वैसा बस करके देखो और देख लेना परमेश्वर कितने अद्भुत काम आपके जीवनों में कर सकते हैं। अगर आप पिछले इतवार का जो प्रचार है, अगर उसको आप जाकर सुनोगे, उसमें हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने यहोशू को पहले ही बोल दिया था कि वो भूमि मैंने तुझे दे दी है। यू हैव टू ओनली गो एंड रिसीव इट। आपको सिर्फ जाकर उसको स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। अलग से जाके आपको कुछ बांधना नहीं है। वी नीड टू लर्न टू रिसीव। हमें ग्रहण करना सीखना है, स्वीकार करना सीखना है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें। आप जहाँ कहीं भी हो, आप इस सुबह देख रहे हो ऑनलाइन गूगल मीट पे या यूट्यूब पे, या अगर आप यही वीडियो 10 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी देख रहे हो, अभिषेक वही है, परमेश्वर वही है। परमेश्वर आपको अभी भी छू सकते हैं। ओके, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इन सारे भाई बहनों के लिए जो स्क्रीन के दूसरी ओर बैठकर फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, अभी या बाद में। इन सभी को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन्हें सामर्थ के साथ भरिए ताकि वो उन यरीहो के दीवारों के इर्द गिर्द घूमकर उन दीवारों को गिराने पाए। उनको उतना विश्वास से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आज्ञाकारिकता में चलने पाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें अनुशासित करिएगा ताकि वो आज्ञाकारिकता में चलने पाए। मैं हर शत्रु के योजना को मैं नकारता हूं, धिक्कारता हूं यीशु मसीह के नाम में। I declare in the name of Jesus, all the walls of Jericho be fallen in the name of Jesus right now. Every single wall of addiction, every single wall of distress, walls of depression, walls of abortion, walls of lust, walls of फैमिली ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली, परिवारों के बीच में झगड़े, उन सारे दीवारों को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ के गिराता हूँ इसी समय। पवित्र आत्मा आप में से बहुतों को छू रहे हैं इस समय, जैसे आप देख रहे हो पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। उनका अभिषेक आपके ऊपर उतर आ रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज हैवी। शेखेरा बाल बदा शेखेरा बाबा बाबा बाबा। कोई बहन है जो अन्य भाषा में नए शब्द को पा रही है या वरदान को पा रही है। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपके इस अद्भुत उपस्थिति के लिए, और सारी चीज़ों को हम आपके हाथों में ला सौंपते हैं। इन सारे लोगों को आपके हाथों में देता हूं। पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति में, आपके अभिषेक में आप उनकी अगुवाई करें। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमीन,
Amen, amen, amen. Wow. So अगर आप आज के प्रचार के साथ, आज के वचन से अगर आप आशीषित हुए हों तो कृपया करके हमें बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से, स्पेशली यूट्यूब से, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दो कि सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, मतलब ठीक है अभी तो फ़िलहाल कलीसियाएँ खुली नहीं हैं, परंतु जब कलीसिया खुलेंगी हम फिर भी रविवार की सभा ऑनलाइन रखने वाले हैं। आमीन। ऐसा नहीं है कि हम जब फिज़िकल चर्च शुरू हो जाएगा, जब हम इकट्ठा होंगे तब हम ऑनलाइन बंद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने ऑनलाइन चर्च शुरू कर दिया है। आमीन। तो जितने भी लोग आप पुणे के बाहर से जुड़ रहे हो, अगर आप पुणे में हो तो आप शारीरिक रूप में हमारे साथ आकर जब कलीसियाएं खुलेंगी आप हमारे साथ आकर भाग ले सकते हैं। हम एक साथ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लेकिन अगर आप पुणे के बाहर हो और आप एक कलीसिया की खोज कर रहे हो और अगर पवित्र आत्मा आपको कहते हैं कि इस कलीसिया से जुड़ना है तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। आमीन। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी लिखा गया है, उसके ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हो। हिंदी में हो, मराठी में हो, इंग्लिश में हो या किसी और भाषा में हो, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम तक पहुँचे और हमको बताना कि आपको हमारे ऑनलाइन चर्च का भाग होना है, हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। तो हम आप तक पहुँचेंगे जब आप हमें मैसेज करोगे, यानी कि ईमेल करोगे, है ना, मेल के ऊपर हमें बताओगे, तब हम तक ज़रूर पहुँचेंगे, है ना। प्रतिरूप में हम आप तक पहुँचेंगे और हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आमीन। अगर आपकी गवाही हो तो कृपया, अगर आप परमेश्वर ने आपको सप्ताह भर में छुआ हो या आज की सभा में आपको उन्होंने छुआ हो तो कृपया करके हम तक पहुँच के ईमेल पे हमको बताइएगा। ओके। सभा समाप्त करने के पहले हम भेंट के समय की ओर जाने वाले हैं। आमीन। हम आने वाली भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और जैसे ही प्रार्थना करी जाएगी उसके बाद डिटेल्स जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो उन डिटेल्स के ऊपर आप आपके दशमांश को, आपके भेंट को ज़रूर बो सकते हो। आमीन। क्यों ना हम आने वाले भेंट के लिए, दशमांश के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इन सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल। प्रभु, मैं उन सारे लोगों को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, जो अपने दशमांश को आपके भवन में बो रहे हैं। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ इस समय आप उनके कामकाज की जगह को आपके हाथों में ले लीजिएगा, उनके आमदनी को आपके हाथों में ले लीजिएगा, उनके खर्चों को, उनकी ज़रूरतों को। प्रभु, मैं आपको उन सभी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनको हर चीज़ में भरपूरी से भरे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उन लोगों के लिए जो भेंट बोए हैं, अपना सर्वोत्तम भेंट आपके भवन में लाए हैं। उन्होंने अपना आदर किया है, आपका आदर किया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी उनका आदर करें, आप भी उन्हें आशीषित करें और उन्हें और मौका दे कि वो आपका आदर करने पाए। मैं उन लोगों के लिए अधिकतर प्रार्थना करना चाहूँगा प्रभु जो आपके भवन में नहीं बो पाए हैं किसी भी कारणवश। मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें दुगना आशीषित करें ताकि वो आपके भवन में बोने का, आपको आदर करने का सौभाग्य पा सके। पिता परमेश्वर, जो भी रकम बोई जा रही है, ये सारी की सारी रकम जो है केवल आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, किसी मनुष्य के फ़ायदे के लिए नहीं, मुनाफे के लिए नहीं। धन्यवाद करता हूँ हर चीज़ के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दी जाएंगे कलीसिया। क्यों नाम परमेश्वर के भवन में अपने भेंट को बोए और आपसे मिलेंगे अगले रविवार को। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की।